Sonam Raghuvanshi, the prime suspect in the Meghalaya honeymoon murder case, will be produced before the Meghalaya court. Earlier, she was taken to a Shillong hospital for medical examination. Meanwhile, according to a Meghalaya police officer, she paid 20 lakh rupees to contract killers after the murder. Vipin Raghuvanshi, Raja Raghuvanshi's elder brother, has told the press that Sonam had confided in her mother about her relationship with Raj Kushwaha, the man now accused of plotting Raja Raghuvanshi's murder with Sonam. But Sonam's family refuses to accept the relationship, insisting that her marriage must happen within their community. Sonam is alleged to have told her mother that she will marry Raja, but everyone will have to bear with the consequences. As details continue to emerge, police say that Sonam plotted Raja Raghuvanshi's murder just 3 days after their wedding on the 10th of May in Indore. Here's a rough timeline of events as shared by a senior Shillong police official. On the 21st of May, the couple reached Meghalaya for their honeymoon. A day later, 3 contract killers arrived in Shillong. Raja Raghuvanshi's body was discovered in a gorge in East Khasi Hills district on the 2nd of June. Initially reported missing, Sonam vanished after the alleged murder. Suspicion quickly fell on her, and by the 7th of June, Meghalaya police launched Operation Honeymoon to track her down. Sources revealed that Sonam was present at the crime scene and instructed the contract killers to hit him. As CCTV footage shows her speaking to the accused hitman around 10 kilometers from where Raja was killed. The murder weapon was reportedly bought near the Guwahati railway station. Following the murder, Sonam fled to Indore via Siliguri on the 25th of May. There she reunited with her alleged lover Raj Kushwaha and stayed in a rented accommodation. The couple later travelled to Ghazipur in Uttar Pradesh via Varanasi. Sonam was detained at a roadside dhaba in Ghazipur on the 10th of June after being on the run for days. The police also recovered crucial forensic evidence from the crime scene, including a blood-stained raincoat belonging to Sonam, which she had reportedly handed to one of the killers. A mobile screen and a jacket belonging to another accused were also recovered. इन्होंने बहुत मेघालय को बदनाम करा है, वो बदनाम करा है, जबकि वो तो नहीं अंडरग्राउंड काम कर रहे थे किराए के मकान में। रातों रात वो क्या दिन में सफ़र नहीं करती, रात में सफ़र करती थी ये, कि दिन में कोई पहचान लेगा। बहुत अच्छा काम किया। मैं तो मेघालय का जो बदनाम करा था, माफ़ी चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छे। आप माफ़ी मांग रहे हैं? हाँ। क्यों? बदनाम वो लड़का ला कर रहे ना। आप मैं तो मुझे तो मेरा बच्चा पहले लाश है, मगर ढूंढते निकाला। वो तो आज भी कह रहे हैं मेघालय वो एक ही सूरत की है, सीबीआई चाहिए, सीबीआई चाहिए। क्या करें सीबीआई के? मेरा बच्चा तो मरा वाला दिया, तेरी छोरी आज जिंदा है, वो तो इसके भी वो केस बंद हो जाएगा, फिर वो शादी करेगी उससे ही। आप क्या मांग करते हैं? इनको तो फांसी की सजा। पहले तो पूरी इंक्वायरी अभी होगी, इसमें और भी पकड़ाएंगे। देखिए, उसमें ऑलरेडी टीम रवाना हो चुकी है और ये शिलोंग पहुंच चुके हैं और इंदौर पुलिस की जो असिस्टेंस इनके द्वारा मांगी गई थी, 7 तारीख से टीम यहाँ पर थी और कल रात को इंडिगो फ्लाइट से रवाना हो गई 9:45 पर और शिलोंग पहुंच भी गए हैं। जो मेरे डीएसपी जो क्राइम के उनसे शिलोंग से बात हुई थी। घटना को लेकर क्या अभी आए? अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं, चूँकि ये टीम जा चुकी है। चूँकि टीम की इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच साथ थी, क्राइम ब्रांच की कोई अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, ये मैं बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये शिलोंग पुलिस की जो टीम आई थी यहाँ पर, उस समय ये ऑपरेशन शुरू किया गया था उनके साथ मिलकर। अभी फिलहाल इन 4 आरोपियों के अलावा और अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो इंदौर से संबंधित 4 आरोपी जो थे, जो इन क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था, इसके अलावा किसी भी प्रकार का इनपुट शिलोंग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस को नहीं दिया गया है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में और किसी का नाम नहीं आया है ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली। लेकिन अगर शिलोंग पुलिस, चूँकि जैसा कि मैंने बताया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के निर्देश पर लगातार डीसीपी क्राइम ब्रांच इसमें सुपरवाइज कर रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा पॉइंट दिया जाता है तो यथासंभव हर संभव इनमें मदद इन्वेस्टिगेशन में शिलोंग पुलिस को दी जाएगी। कोई भी बात अनऑफिशियली ऑफिशियली सामने नहीं आई है।
ये बैंक में अकाउंट इसके चेक किए गए? ये जैसा कि मैंने बताया, शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो चली गई है। अब शिलोंग पुलिस अगर ऑफिशियली हमारे साथ शेयर करती है, कोई वेरीफाइड अगर पॉइंट करने को बोलती है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच मदद करेगी। क्या हमारे भाई को न्याय मिले, उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दें। इतनी दूर लेके गए, हमने उसको देखा भी नहीं है। संडे के दिन से देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। कहाँ गए थे आप? क्राइम ब्रांच गए थे, हम और मम्मी गए थे। तो बोला कि दूर से दिखा दो हम लोगों को, तो उन लोगों ने बोला कि दिखा भी नहीं सकते, आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, आप लोग जाओ। ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब कभी किया ही नहीं है, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। भाई साहब की आखिरी बात क्या हुई? संडे के दिन भैया आए थे तो बस ये बोला कि सुहानी मेरे कपड़े निकाल दे, मेरे को मंदिर जाना है, बस। उसके बाद भैया चले गए। फोन लगाया होगा जब तो उसके उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, सब लोगों को लगाया, सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद मम्मी को फोन किया, उन्होंने बताया, विशाल भाई की मम्मी को फोन किया। मैंने उनसे बोला पड़ोसियों से पूछो कि घर में वो लोग हैं कि नहीं है, उनका फोन बंद आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि घर में ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है घर में। उसके बाद फिर मैं लगातार वो जो ऑफिस के भैया उनको फोन लगा रही थी कि भैया मेरे भैया नहीं मिल रहे हैं। वो बोल रहे थे मिल जाएगा, उसने कुछ नहीं किया है, उसने कुछ नहीं किया। बाद में 3-4 बजे पता चला कि उसको पुलिस लेके गई। News 9 spoke to Shrashti Raghuvanshi, sister of the deceased Raja Raghuvanshi. She revealed that the marriage between Raja Raghuvanshi and Sonam was arranged through a community matrimony app, and that from the beginning. Sonam appeared disinterested and barely communicated with Raja. Listen in. Hi Shrishti, you are speaking to News 9. मैं News 9 से साक्षी लिटोरिया बात कर रही हूँ। मैंने वीडियोस देखे जो आपने अपने भाई के साथ में डाली है। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि राज और सोनम का रिलेशनशिप कैसा था, किस तरीके से दोनों का रिश्ता तय हुआ था? दोनों का रिलेशन अच्छा था। ऐप आता है हम रघुवंशी समाज का, उससे सोनम की वहाँ पे फोटो आई थी, वहाँ से हमने रिश्ता तय किया था, पसंद किया था उसको, सोनम को। अच्छा। पै- जिस तरीके से जैसे कभी किसी का शादी का रिश्ता अगर तय होता है तो जनरली आमतौर पर लोग दोनों तरफ का बैकग्राउंडर चेक करते हैं। तो क्या सोनम के बारे में आप लोगों ने बैकग्राउंडर चेक नहीं किया था उसका? किया था हमने, पर इतना ज्यादा ध्यान वो नहीं किया था। तो उनके बारे में जो उनका इन्वॉल्वमेंट किसी और के साथ में बताया जा रहा है, क्या उस बारे में कोई जानकारी पहले निकल के आई थी सामने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता था हमको। क्या आपके भाई ने कभी सोनम के बिहेवियर के बारे में शादी के बाद कुछ बताया था आपको? नहीं, शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं था। शादी से पहले बस ये बोला था कि वो मुझसे बात नहीं करती है, बहुत कम, मतलब बात ही नहीं करती है, टाइम ही नहीं रहता उसके लिए। तो फिर मम्मी को बोला उसने, तो फिर मम्मी ने सोनम से बात करी कि तू क्यों नहीं बात करती है, तेरे को इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में? तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ, थक जाती हूँ, इसलिए बात नहीं करती हूँ। इन्होंने जैसे मेघालय का हनीमून का ट्रिप बनाया था, तो क्या ये आप लोग को बता के गए थे कि ये मेघालय जा रहे हैं या कहाँ 2 जा दिन रहे? पहले ही पता चला था। सोनम ने टिकट बुक करी थी। शादी जब तय हुई थी तो शादी तय होने और शादी होने के बीच में कभी कोई फ्रिक्शन पॉइंट इस तरीके का आया कि सोनम से बातचीत में कुछ ऐसा लग रहा हो कि वो इच्छा नहीं रखती है शादी करने की या कुछ इस तरीके का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सगाई हुई थी, उसके बाद राजा ने पिक्चर देखने का बोला था कि मूवी देखने चलते हैं, तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़कियां नहीं जाती है घूमने फिरने, हमको घर वालों को पसंद नहीं है, ऐसा बोल दिया था उन्होंने, तो उन्हें जाने ही नहीं दिया था। तो क्या आपको पता चला है कि सोनम ने सरेंडर किया है या उन्हें पकड़वाया गया है, क्या है? उनके जो भैया हैं उनके पास 1:30 बजे रात में कॉल आया था सोनम का, एक ढाबे से कॉल किया था उसने, ये पता चला है हमको, क्योंकि भैया की बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला है कि 1:30 बजे रात में सोनम का फ़ोन आया था। उसने मुझे बताया है कि मैं यूपी साइड हूँ, और वहाँ से कॉल करके फिर वहाँ की पुलिस को हमने कॉल किया, पुलिस ने वहाँ से उनको उठाया था। उनके पापा का भी ये कहना है कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। इस बारे में आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही है? हमको तो एकदम से ये सब पता चला कि सोनम मिल गई, उसके बाद फिर ये निकल के आ रहे हैं कि उनको 3 लोगों के साथ गई थी, 2 लोगों को पहले ही वहाँ पहुँचा दिया गया, टिकट भी सोनम ने करी, 5 साल पहले का रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, तो हम क्या बोले, मतलब पूरे सबूत तो उसके लिए खिलाफ ही है।